ایک بندہ مجھے حویلی میں ملا ڈیرہ غازی خان سے آیا تھا حویلی میں. مجھے کہنے لگا کہ میری ہوٹل کسی کی چلتی نہیں اور میرا حال یہ ہے کہ تھیلے بھر کے جاتا ہوں. تو آپ نے 2 عمل بتائے تھے اور 2 عمل کی وجہ سے آپ کو دعائیں دیتا ہوں اور آپ کو میں دیکھنے آیا ہوں. میں نے آپ کے 10 میں کہانیاں سنی تھی, شاید پہلے دیکھا ہوگا. کون سا عمل؟ ایک تو ہڈیاں کبھی بھی میں پھینکتا نہیں, ہڈیاں کبھی نہیں پھینکتا, رزق کبھی پھینکتا نہیں, اور سورت کوثر کبھی چھوڑتا نہیں. اور ہاں پرند اس کو دلوں میں یہ جو چمچیوں کے دل ہیں ان کو میں لنگر ڈالتا رہتا. بس یہی میرا عمل ہے اور اس عمل کی وجہ سے میں اور دولت کہا لوگوں کی ہوٹلیں چلتی نہیں اور میرا حال یہ ہے کہ میں تھک جاتا. یہ جو ہڈیاں ہیں نا, ہڈیاں میرے آقا کا فرمان ہے, حدیث کا مفہوم ہے, اللہ پاک ان کو پھر رزق لگاتا ہے اور نیک جنات اس رزق کو کھاتے ہیں. اولیاء جنات میرے پاس واقعات ہیں, میں نے سنائے ہیں درس میں. ایسے واقعات ہیں کہ میں نے ہڈیوں کا عمل دیا, انہوں نے گھر میں جو ہڈیاں پھینکی نہیں صاف جگہ پہ رکھی. بلیاں کتے بظاہر کھا جائیں, چیل کوے بظاہر کھا جائیں, بظاہر رات کو جنات آئے خواب میں. اب ہمیں شرم آتی ہے آپ کے گھر میں رہتے ہوئے اور آپ کو تنگ کرتے ہوئے. کون ہے آپ؟ کہاں وہی جنات ہیں جو آپ کے گھر میں آگ لگاتے تھے, کپڑے پھاڑ دیتے تھے, بیماریاں تکلیفیں جھگڑے کرواتے تھے, نفرتیں ڈلواتے تھے. جب سے آپ نے ہمیں رزق دینا شروع کیا ہے اب ہمیں شرم آتی. کون سا رزق؟ کہا تم ہڈیاں نہیں ڈالتے, چھاپ ہڈیاں جگہ پہ نہیں رکھتے, وہ رزق ہمیں ملتا ہے. اب ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ آپ کے گھر میں ہم آپ کو تکلیف دیں, ہم جا رہے ہیں. کہا ہم نے ایسی آنکھوں سے دیکھا, ایسے دروازہ کھلا اور اس قافلہ ہے بندوں کا جا رہا اور دور تک ان کا آثار نظر آئے کہ بس وہ آنکھوں سے اوجھل ہو گئے. کہا اس عمل سے مجھے بڑا کچھ ملا ہے, بہت کچھ ملا ہے. اور دوسرا جو میں بلوں اور چونٹیاں ان کو رزق ڈالتا ہوں, روٹیاں بچی, چاول بچے, باجرہ ہے, شکر ہے, چیزیں ہیں, تو رزق بچا, اس کی حفاظت کی اور اٹھا کے ان کو ڈالا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گھروں میں بلیاں بولتی ہیں کہ جی بلیاں بولتی ہیں, بلی سے محبت کرو, 4000 مغفرت اور رحمتیں بھیجتے ہیں اس قبر پہ جس کو ایک بار کلمہ پڑھ کے آپ دے دیں. کتے کو پالنا اس وقت ہے جب آپ کا بڑا گھر ہے, بچے کے مراحل کا اللہ نے نظام 40 دن کے بعد. سانپ کے ٹسے کا علاج ہے, بچھو کے ٹسے کا علاج ہے, یہ آیت اسی آیت ہاں, بھیڑ کے ٹسے کا علاج ہے. آپ پڑھ کے پھونک مارتے ہیں, لعاب لگا لیں. بہت کمال آیتیں ہیں, بہت کمال آیتیں. اچھا, لاسٹ ٹائم جو آپ تشریف لائے تھے تو ایک ہم نے ہمارے آفس کے گراج میں کالی بلی تھی, تو آپ نے اس کے بارے میں کچھ تفصیلات بتائیں. ہم تو اس کا مذاق بناتے ہیں کالی بلی راستہ کاٹ جائے تو اس میں, لیکن وہ آپ بتائے تھے کہ نہیں اس میں بہت میتھ ہے, بڑی سٹوری ہے. کالا کتا اور کالی بلی میں فرق ہے. اللہ کے حبیب میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے, سب سے پہلے جو چیز بنائی وہ مسجد بنائی جو آج مسجد نبوی شریف ہے. ٹھیک ہے. اور کچھ مہمیں چلائیں, ان میں ایک مہم تھی کتے مار. اچھا, کتوں کو ختم کرو اور بلیوں کو تحفظ دو. بلیوں کو تحفظ دو اور کتوں کو ختم کرو. میرے حضور نے بلیوں سے محبت کی. پھر حضور نے فرمایا اب چھوڑو, اب جو کالا کتا نظر آئے اس کو ختم کرو. شیاطین, کالے شیاطین ہمیشہ کالے کتے کی شکل میں آئیں گے. ارے ہمارے یہاں کتمیر کا عمل ہے. کتمیر, اصحاب کہف کے کتے کا نام کتمیر تھا. کتمیر, جی بالکل. میں اصحاب کہف کے نام پڑھتا ہوں. الہی بحرمت یملیخا, مکسل مینا, کشفتت, تب یونس, ازرافت یونس, کشافت یونس, یوانس بوس, وکلبہم کتمیر. میں ترکیہ میں ایک شہر ہے تارسس, اس کی غار ہے, وہاں گیا ہوں. اصحاب کہف کی غار ہے. ارے اللہ, ابھی میں ستمبر میں گیا تھا 22 میں. تو ہاں, کالے کتے کی بات چل رہی تھی ہماری. تو
कितमीर की एक दावत होती है, वो एक लंबा अमल है, मैं सिर्फ हवाला दे रहा हूँ। काला कुत्ता, अब बात चली है काली बिल्ली की। जी जी, मेरे हुजूर ने बिल्लियों को पसंद फरमाया। एक साहबी थे, उनका नाम अब्दुल शम्स था, शम्स का बंदा, हुजूर ने रखा अब्दुल्लाह, अल्लाह का बंदा। अल्लाह का बंदा। उनके पहलू में बिल्ली थी, वो बिल्लियों से मोहब्बत करते थे। तो हुजूर ने फरमाया, ओ बिल्लियों का बाप अबू हुरैरा, अल्लाह या अबा हुरैरा। और उसके बाद से उनका नाम कोई नहीं जानता, वाह, अबू हुरैरा सारे जानते। अबू हुरैरा सारे जानते। तो बिल्लियों से मोहब्बत, आज भी हरम में, मक्की मदनी हरम में, मक्का बिल्लियां मौजूद है। और ये जो काली बिल्ली है ना, काली बिल्ली, अब ये काली बिल्ली काट जाए, रास्ता काट जाए, नहीं, बिल्लियां, अच्छा पास औकात ऐसा होता है कि घरों में बिल्लियां बोलती हैं, कि जी बिल्लियां बोलती हैं, बड़ी बड़ी अनोखी आवाज़ें निकालती हैं। अल्लाह ने इनकी अफसैस का निज़ाम रखा है, इनके नर और मादे मिलने की तरतीब रखी है, उस वक्त की आवाज़ें होती हैं और ये ख़ास मौसम में होती हैं। लेकिन ये खौफ और दहशत नहीं है कि बिल्ली बोल रही है तो लोग कहते हैं कि बोल रही है बिल्ली, डर बिल्ली से मोहब्बत करो, बिल्ली को खाना दो। एक अमल और बता दूं बिल्ली का, और ये मेरे पास इसके मुस्तनद हवाले मौजूद हैं। बाज़ औक़ात इंसान नावाकफियत की बुनियाद पे कहते हैं ये कहाँ से लाए, कहाँ से लाए। बिल्कुल, आप जानदारों को आमाल का हदिया करें और उन्हें दुआओं का कहें, जानदारों को जो बेज़ुबान है। कलमा पढ़ के एक दफ़ा दे दें। फरमाया जो किसी मरहूम को एक दफ़ा कलमा देता है, साहिब कब्र को, कोई भी है, प्यारा है, कर्ज अजीज़ है, और मैं अल्लाह 4000 नेकियां कब्र में दाखिल करते हैं, 4000 गुनाह माफ़ करते हैं, 4000 दर्जे बुलंद करते हैं और 4000 मग़फ़रत और रहमतें भेजते हैं उस कब्र पे जिसको एक बार कलमा पढ़ के आप दे दें। किसी ने कलमा आपके अजीज को, आपको याद आया, महबूब याद आया, या किसी कब्रिस्तान से गुजर रहे हैं, एक बार कलमा पढ़ के देते हैं, वालिदैन है या कोई भी, इतना बड़ा अजर है कलमे का। तो आप अपने इन बेज़बानों को, कोई मुराद पाना चाहते हैं, कोई मुश्किल पाना चाहते हैं, कोई मसाइल हल करवाना चाहते हैं, आप इन बेज़बानों को हदिया करें आमाल का और इनसे कहें हमारे लिए दुआ करें, अल्लाह हमारी ये ज़रूरत, क्यों, इनमें गुनाह नहीं है। अच्छा, इसकी दलील देता हूँ। रिवायात है, सहीहैन की रिवायात है कि फरमाया एक फाहिशा औरत थी, उसने प्यासे कुत्ते को पानी पिलाया और रब ने उसको बख्श दिया। जी, और एक नेक औरत थी, उसने बिल्ली को बंद कर दिया और बिल्ली बंद होकर आखिर मर गई, उसकी पकड़ में जहन्नम में चली गई। ये रिवायात में है। जानवरों के साथ शेख बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह को ख्वाब में आया कि एक खारशी कुत्ता है, खारशी कुत्ता जिसको कोई वारिस नहीं, उसकी ग़िज़ा का इंतज़ाम कर, मैं उसकी ग़िज़ा में, परवरिश में तुझे अपने नाम की विलायत दूँगा। अल्लाह को अपनी मखलूक बड़ी पसंद है, वो कोई है, बस आपका काम उसका इकराम करना है, उससे मोहब्बत करनी है। देखें, कुत्ते को पालना उस वक्त है जब आपका बड़ा घर है, हिफाजत है, उस वक्त इजाज़त है। जी बिल्कुल, इजाज़त है। बड़ा घर है, मेरा अपने घर में मेरे जर्मन शेफर्ड हैं बड़े, मेरा 90 कनाल का घर है अपना, बाप दादा पर दादा का, वो उसकी रखवाली के लिए उसके लिए आप रख सकते हैं। लेकिन बात यह है, मैं अक्सर अपने बेटों से कहता हूँ, बेटा ख्याल करना, ये दिल में ना आए, दिल से हर वक्त पूछते रहना कि ये मैंने कुत्ते क्यों रखे हैं, अल्लाह तेरी रजा समझ के या अपना इश्क और मोहब्बत समझ के। बड़ा हसास मामला है, मैं खुद डरता हूँ। तो ये जो आयत बता रहा था, ये आयत और काली बिल्ली, इससे नहीं डरना चाहिए, बिल्लियों का इकराम करें, बिल्लियों से मोहब्बत करें। तो ये बातें काली बिल्ली रास्ता काट दो, सारा कुछ, वो सारा ऐसे ही कुछ। इंसान का बाज़ औक़ात ख्याल किसी अमल पे गालिब आता है, फिर कहते देखो बिल्ली आई थी ना, ये हो गया था, वो हावी हो जाता है, वरना ऐसे कोई ऐसी बात, ऐसी चीज़ ऐसी नहीं। अभी हमें थोड़ी देर पहले एक और जिक्र किया, वो 40 दिन का, ये 40 दिन का जो होता है, ये जिसको चिल्ला भी कहा जाता है, बहुत ज़्यादा जिक्र होता है कि ये अमल किया जाए 40 दिन तक। तो ये 40 का एक तो वैसे ही एक हज़ूर के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत जो है 40 ईयर्स में मिली, और 40 का बहुत ज़्यादा एक जिक्र, पूरा सिलसिला जो है एक चल रहा होता है। तो ये क्या मैथमेटिक्स है, ये क्या है ऐसे 40 का? निज़ाम आलम में आदात की दुनिया को बहुत बहुत मकाम है। फजर की 2 रकतें हैं, 3 हो सकती थी, मगरिब की 3 है, 2 हो सकती थी, 4 हो सकती थी, ऐसे। अच्छा, फिर
तस्बीहात फातिमा में 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाह अकबर है। And becomes 100 जी पूरा, हाँ। ठीक, अच्छा, फिर तवाफ के 7 हैं, चक्कर 8 नहीं है। सही, सफ़ा मरवा के 7, कायनात का निज़ाम, 7 आसमान 7 ज़मीन, कुरान ने बयान किया। अल्फाज और आदात की दुनिया में बड़ी ताकत है और इसकी एहतियात ज़रूरी है। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने फरमाया कुछ दिन और बढ़ा दे, हत्ता के तूर पे 40 दिन हो गए। तो 40 के साथ अदद है। फिर माँ के पेट में बच्चे के मराहिल का अल्लाह ने निज़ाम 40 दिन के बाद, फिर 4 महीने के बाद, 4 महीने उस पर रूह और ज़िंदगी, इसका बहुत ज़्यादा दखल है, ताल्लुक़ है इसका। और जो 9 मंथ्स का कहा जाता है वो भी 40 वीक्स बनते हैं, जी, हाँ जी, ऐसे, उसमें जी, वो इस तरह से। तो ये सारा कुछ इसी तरह से मतलब सिलसिला, ये एक अलग इल्म है, तो ये भी तो आपके बहुत पास ज़्यादा इल्म है, ये भी एक पूरा वास्ट इल्म है। एक पूरी दुनिया है जिसका मैं तालिब इल्म हूँ, बहुत बड़ी दुनिया है। मैं अभी तक कुछ नहीं पहुँच सका इसमें मुख्तसर पहुँचा हूँ, लेकिन एक इल्म है और बहुत वसी इल्म है। अच्छा, फिर हमारे यहाँ ऐसा होता है कि हमारे यहाँ कोई बंदा 2-4 किताबें पढ़ ले तो कहता है ये अंग्रेज़ों को नहीं होता। वो नाइल्मी है, नावाकफियत है। अंग्रेज़ इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखता है, गोरा बहुत ख्याल रखता है, और इस पे किताबों की किताब है। आज तो हर बंदे के हाथ में नेट की दुनिया मोबाइल के नाम पे है। बहुत ज़्यादा अंग्रेज़ों ने इस पे सैकड़ों हज़ारों किताबें, ये इल्मुल आदात पे, नजर बद पे, जादू जिन्नात पे, नजर बद पे, जादू जिन्नात हाँ, पे। आपके पास लाइब्रेरी में आपने बहुत ज़्यादा, मेरी अपनी की लाइब्रेरी, उसमें आप सर्च करेंगे तो जादुई लाइब्रेरी आएगी, किताबें ही किताबें वो सिर्फ इसी हवाले से, इसी हवाले से, बहुत ज़्यादा इसी हवाले से। वो इन चीज़ों का अंग्रेज़ बहुत ख्याल रखता है। असल में हुआ ये है, हमें मुगालते में डाल दिया गया है, खुद नफ़ा पा लिया गया है, हमें कंफ्यूज कर दिया है, हम भटक रहे हैं, गोल गोल घूमे जा रहे हैं, और ख़ुद वो अपना ट्रैक उन्होंने सीधा किया हुआ है। बिल्कुल सही है। अच्छा, कुछ लोगों ने बड़े मुख्तलिफ सवालात भेजे। एक तो सवाल यही जो ज़्यादा कॉमन सवाल हैं, वो शादी की बंदिश और रुकावट, या कोई कहता है कि जादू, तो कोई भी काम ना होना तो हम कहते हैं जादू हो गया। तो ये वो शादी की बंदिश या इन चीज़ों पे हम क्या कोई ऐसा अमल जो जादू ना भी समझ के जो है वो हम कुछ ऐसा पढ़ लें कि ये रुकावटें ख़वातीन की और लोगों की दूर हो जाएं, कोई ऐसा अमल बता दीजिए। मैंने 2 अमल बताए हैं। जी जी। एक कपड़े की गेंद का अमल, इसी मकसद के लिए। ये भी शादी की बंदिश तो आपने लफ्ज़ बंदिश है ना, वो बंदिश शादी की हो, वो रिस्क की हो, वो सेहत की हो, कोई भी हो, लफ्ज़ बंदिश है, उसके रुख हैं। अच्छा, वो रिश्तों की तरफ कर दिए जाए, ठीक, वो रिस्क की तरफ कर दिया जाए, वो सेहत की तरफ, चीज़ एक है। देखिए, वही रिवाल्वर है, वो जिसकी तरफ कर दिए जाए गोली वहीं जाएगी, ठीक है। ये जो, और दूसरा जो इन्नहुम यकीदून कैद, ये सूरत वस्समाए वत्तारिक, सूरत तारिक की आयात मैंने बताई हैं, ये बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, इसमें जितनी बंदिश सख्त मालूम हो। अच्छा, एक चीज़ आपने अभी बयान की कि ये कैसे पता चले कि ये बंदिश है, और बाज़ औक़ात हमें बंदिश होती भी नहीं, हम कहते हैं जादू ही जादू। हाँ, जादू है या कोई ऐसे इसमें। आप ये आयत मुबारक वो हैं जो जादू नहीं भी है ना, ये नज़र बद का काट है, ये आयत, ये जादू का काट है, ये बंदिश की काट है, ये बीमारियों की काट है, जैसे मैंने अर्ज़ किया ना, भेड़, सांप वगैरह। ये आयत मुबारक बहुत ज़्यादा पढ़ें। जब देखें कि मामला बहुत संजीदा है तो फिर हर नमाज के बाद 25 बार पढ़ें, और बहुत डूब के पढ़ें, तवज्जो से पढ़ें। आम हालात में सुबह शाम पढ़ें, लेकिन अगर कोई ऐसा आपको लग रहा है, कोई खटका है ऐसा, तो फिर वो हर 5 नमाजों के बाद जो है वो ये आयत पढ़ी जाए। बिल्कुल ठीक है। एक मैं चीज़, जी जी जी, आपने शादियों के बंदिश की बात की थी जी, अभी, शादी में रुकावट, हाँ जी, रुकावट रुकावट बंदिश, हाँ जी।